So, all students, I will teach you something. I will give the information about the skeleton today, and if there is some query, we can discuss later. It is a revision. I think most of the things you have been covered in the earlier sessions, but it is just a revision for you people, right? Today we are going to share the information about skeleton, and this is a picture. We will start it. I think picture is clear. Everyone can read it. No, I think it's not. You're not able to see. You need to click on the skeletal system and share that, Ajay sir. Yes. We can't see it. You can't. You can probably do a double click on that. We can see your body system pictures where you have the icon, but we aren't able to see what is there in the skeletal system. Now it is okay? No, you need to reshare it once again, I guess. Okay. Yeah. Can you see that? Yes, now we can see. Thank you. Yeah. So we will discuss about skeleton system. How many people believe in the God? From you people? What? Everyone. Everyone. Very nice. And as we learn about our body part, we will believe more, because it is amazing, our body system, and skeleton is playing a role of a frame in our body. If we remove the frame from a body, what will be there? Can you stand? No, not at all. You will be just like a ball. You cannot move, you cannot stand, you cannot sit, you cannot give any activity, you cannot hold anything. It is just like that. Okay? So, it is beginning now. We are starting skeleton system. Exactly what is a skeleton system? A skeleton system is all about Bones, consisting of bone, cartilage, tendons, and ligaments in the body. Altogether, skeletons makes up about 20% of weight of our body. When we take a birth, at that moment, we have 210 bones in our body. And after, as we grow, we merge 4 bones into the body. And these 4 bone part merge from where? The edge of the spine at the lower part, the tailbone. Okay? Are you getting me? Yes, yes. Good. Now we will talk about more. So, first of all, you can see the head. You can see this portion. It is about 22 bones here in the head. Carnal bone, 8 carnal bones from the bulk of your skull. They help to protect your brain. Facial bone, 14 facial bones are there, and this can easily work, like you can speak, you can do anything, you can chew. All these are in the facial bones. जो ऊपर का जो पोर्शन है ये, यहाँ पे मेन 4 पोर्शन होते हैं. एक तो आगे का, और
2 साइड के और एक पीछे का, ठीक है। तो ये हमारे सिर को बचाता है किसी भी चोट से, किसी भी ढंग से, राइट। नोजल बोन, एज यू नो, ये हमारा नोजल बोन है जो प्रोटेक्ट करता है, सेफ देता है हमारी नाक को आगे की तरफ से। उसके बाद आता है मैक्सिला, ये अपर बॉडी पार्ट जो है इसके फेस में, जो अपर जा को कंट्रोल करता है, और जो नीचे का है मैंडिबल है, जो नीचे बोलने में, च्यूइंग करने में, इस ढंग से हमारे ये 22 बोन होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब हमें ऑडिटरी ऑसिकल्स में आना है। ऑडिटरी ऑसिकल्स में हमारा सुनने की क्षमता जो है, सुनने का काम जो करता है, उसके बारे में बात करते हैं। यहां पर हमारे कान के बीच में एक सबसे छोटी बोन होती है, इससे छोटी कोई बोन नहीं है, इसकी केवल लंबाई लगभग अराउंड 3 mm इंटू 2.5 mm, एक चने के दाने जितने साइज की होती है। इट इज अराउंड जस्ट लाइक अ ब्लैक ग्राम साइज। आप अपने उंगली के टिप पर रख सकते हैं और आराम से देख सकते हैं इसको, बहुत छोटी है। इसके 3 हिस्से होते हैं, मैलस, एंकर्स एंड स्टेप्स, ठीक है। इज दैट क्लियर? Yes, yes. Okay. Now we will talk about the hard bone, जो ये हमारा नीचे का मेडुला, ये मैंडिबल है, इसका जो पोर्शन है नीचे से अगर आप देखोगे तो ये यू शेप में होगी, ये हायोड बोन के रूप में देखी जाती है मैक्सिलर, नीचे का पोर्शन जो है। अब हम आगे आएंगे वर्टिब्रल कॉलम्स। तो ये हमारे 24 वर्टिब्रास हैं और इनमें हमारे अलग अलग सेक्शंस हैं, ठीक है। 7 बोन जो सर्वाइकल बोन बोले जाते हैं, जो ये पोर्शन है हमारा, ये पोर्शन हमारा सर्वाइकल जोन है। कैन यू सी द कर्सर? हमारे जो सर्वाइकल बोन्स हैं वो ये हैं। और उसके बाद है थोरेकिक, जिसमें हम रिब्स केज को कवर करते हैं। तो थोरेकिक वर्टिब्रास में 12 बोन होती हैं जो हमारे इस एरिया को कवर करती हैं। So better to mark with the marker you have a side. Like. ठीक है, ये आपके जब हम ब्रीदिंग लेते हैं तो हमारा लंग्स जो है मूवमेंट चाहता है, डायाफ्राम की तरफ, नीचे की तरफ निकलता है, और हमारे रिब्स केज की मूवमेंट होती है अराउंड 2.5 इंचेस, जो फ्लेक्सिबल होने की वजह से ही हम श्वास ले पाते हैं। अदरवाइज वी आर सो मच कंपैक्ट, इतना कंपैक्ट है कि हम कहीं कुछ भी सुई तक टच करने की जगह नहीं रखते, कटेगा, फटेगा, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। लेकिन रिब्स की वजह से हम अच्छे से श्वास ले सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, हमारे लंग्स की जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है, जो इनहेलिंग कैपेसिटी है श्वास भरने की, वो 5.5 लीटर कैपेसिटी है। और हम क्या करते हैं, नॉर्मली पूरा एक्सपेंशन नहीं दे पाते, तो रिब्स को हम 1.5 लीटर ही ऑक्सीजन कंटेन कर पाते हैं, उसके बाद एक्सेल कर देते हैं। पूरा हम लंग्स का यूटिलाइज नहीं कर पाते। ब्रीदिंग में हमें क्या करना होता है, श्वास को जितना साइड से लंग्स रिब्स के थ्रू एक्सपेंड करते हैं, डायफ्राम के मूवमेंट्स के साथ साथ हम इसको कई गुना बढ़ा सकते हैं, क्योंकि डायफ्राम के मूवमेंट हम अगर चाहें तो नोवल पॉइंट तक खींच के ले जा सकते हैं। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि ब्रीदिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और हमें क्या करना चाहिए ब्रीदिंग के टाइम पे, राइट। इसके बाद हमारी आती है लंबर रीजन, 5 बोन। ये जो नीचे का जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है आप देख सकते हैं, इस पोर्शन में आप वो कर सकते हैं, हमारी जो स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी है, या ये कह लीजिए आप आपकी मूवमेंट है, यहां की वजह से बहुत ही क्लियर है। सारा वेट यहां से मूवमेंट करता है अपर बॉडी का,
और यही रीजन है जो नीचे के L4 L5 ये पोर्शन जो है, कैन यू सी दैट, यहां से ही साइटिका की प्रॉब्लम हमें आती है। होता क्या है, वर्टिब्रा का जो प्रेशर होता है, इसके अंदर जेल होता है, जेल बाहर की तरफ निकलेगा और यहाँ पर नर्व्स होती हैं, वो प्रेशराइज होती हैं, जिसकी वजह से हमें किसी एक साइड में पेन रहता है और ये धीरे धीरे नमनेस बढ़ती है और पैरालिटिकल स्टेज तक पहुंच जाती है, क्योंकि नर्वस सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर पाता इस बोन के इम्बैलेंस डिफॉर्मेशन की वजह से। अगर हम इसको पोस्चरोलॉजी, एक कंसेप्ट है योगा थेरेपी में, जिसमें हम एक्यूरेसी के साथ अगर मूवमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दीवार के साथ लग के या बेड के साथ लग के सरक के बैठेंगे। हमारी जो स्पाइन की स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट 3 की शेप में है, जैसे वी राइट डाउन द 3 इन दिस वे, ऊपर से कर्व होगा, फिर बाहर की तरफ निकल के बीच में से मोल्ड होंगे, फिर नीचे से मोल्ड हो जाएगा। तो 3 की शेप में जो मूवमेंट होती है, अगर हम दीवार के सहारे लगते हैं या बेड के सहारे लग के बैठते हैं, अक्सर लोग आजकल लेथार्जिक उसमें रहते हैं, तो वे कर्व ले लेते हैं और तो हमारी आर्क फॉर्म में आ जाती है कंप्लीट स्पाइन, जिसकी वजह से हमारे को बैक प्रॉब्लम रहती है और साइटिका वगैरह, सर्वाइकल वगैरह इन्हीं के कारणों से होती है। ठीक है, इसके बाद हम आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग दीवार के सहारे ना बैठे हैं? बिल्कुल, बॉडी जब भी हम कुछ काम करते हैं, पढ़ते हैं, बॉडी शुड बी अपराइट स्ट्रेट, उसी शेप में अगर रहेंगे तो हमें बहुत सारी बीमारियों से अपने आप बच जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप आगे झुक के लैपटॉप चला रहे हैं, आजकल के बच्चों के हाथ में मोबाइल है, वो 24 घंटे नीचे की तरफ देख रहा है, तो साइड इफेक्ट क्या आएगा, ये सर्वाइकल बोन आगे की तरफ झुक गई, एक साइड से बॉडी डिफॉर्मेशन होनी शुरू हो गई, हैबिचुअल हो गई। उसके बाद क्या हुआ, इसको रिफॉर्म करने के लिए हमने कभी इसे बैक बेंडिंग की तरफ लेकर ही नहीं गए, जिसकी वजह से सर्वाइकल की प्रॉब्लम आएगी। हो गई कहां, ये जो पोर्शन है, इनमें से किसी भी एक वर्टिब्रा में डिफॉर्मेशन आई और यहां से जेल निकला और यहाँ की नर्वस बाहर आ गई, तो अब आपके इस पोर्शन से होता क्या है, ये जो पोर्शन है हमारे कंधे को, हमारी गर्दन को स्टक कर देंगे, मूवमेंट रोक देंगे। ठीक है, अगर हमारी यही चीज यहां पर आ गई, ये डिफॉर्मेशन अगर हमारे थोरैकिक एरिया में आ गया, तो हमारे हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे और यहां से अटैच जो नर्व्स हैं वो हमारे ऑर्गन्स पे इफेक्ट डालती है, जैसे हाथों की मूवमेंट रोक देगी, कोहनी की मूवमेंट रोक देगी, आपके ब्रीदिंग की मूवमेंट्स भी रोक सकती है, क्योंकि इस पोर्शन से उनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो अटैच करते हैं, न्यूरॉन सेल जो होता है वो एक पूरी बॉडी में वेब की फॉर्म में फैला हुआ है, वो हमारी बोन से भी अटैच है, मसल से भी अटैच है और हर एक सिस्टम से कनेक्टेड है। वो जो हमारे पेन को फील कराता है, हमें देखने की हेल्प करता है, हर चीज में उसका बहुत बड़ा रोल है। आर यू गेटिंग मी? यस। तो दिस इज सो मच साइंटिफिक। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यही कारण है कि क्या हम लोगों को ये, मतलब हमने पढ़ा भी है, ऑब्जर्व भी किया, देखा है कि हम लोग जो सर्वांगासन करते हैं तो उसके बाद में मत्स्यासन करना जरूरी बताया गया। हाँ, काउंटर पार्ट बहुत जरूरी है सर। अगर हम काउंटर पार्ट नहीं करते हैं तो हमारी बॉडी डिफॉर्मेशन की तरफ जा रही है, सूनर और लेटर वी विल सफर फॉर दैट। इसीलिए जब भी कोई पोस्चर करते हैं उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि हम अगर एक बार फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं तो इमीडिएटली वी शुड फॉलो द बैकवर्ड बेंडिंग। ठीक है, अगर हम एक साइड से ट्विस्ट ज्यादा कर रहे हैं तो हमारे एक साइड के ऑर्गन पे ज्यादा प्रेशर आ रहा है, दूसरी साइड के ऑर्गन पे प्रेशर नहीं आ रहा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अर्ध मत्स्येंद्र आसन है, ये हमारे डायबिटिक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है, राइट। अगर हम इसका एक साइड का मूवमेंट कर लेते हैं तो इसका हेड एक्टिवेट रह जाएगा, इसकी टेल एक्टिवेट नहीं होगी, दूसरी साइड से करेंगे तो ही बैलेंस होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पोस्चर्स हैं, जैसे पद्मासन करते हैं, पद्मासन लगाते हैं, एक पैर पे अच्छा पद्मासन लगता है, दूसरे पैर पे पद्मासन नहीं लगता, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक साइड से जो पेल्विक बोन है वहां से इसकी लोकेशन डिफॉर्म की तरफ बढ़ेगी और वहां पे एक साइड में पेन होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए अल्टरनेटिवली वी शुड फॉलो द पद्मासन, चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि इंचेज का तो डिफरेंस रहता है। जो पैर ऊपर आया है तो दूसरा पैर ऊपर नहीं आएगा, तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, राइट। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम लोगों को कभी लेफ्ट पांव ऊपर रखना चाहिए, कभी राइट पांव ऊपर रखना चाहिए? हाँ, चेंज करते रहना चाहिए, टाइमिंग प्रॉपर रखनी चाहिए। अगर आपने 15 मिनट एक पैर पे बैठे हो तो 15 मिनट दूसरे पैर पे बैठ लेना चाहिए, चेंज करके
शिफ्ट करते रहना चाहिए मूवमेंट्स को। और सिद्धासन में क्या करें? जी, सिद्धासन में क्या करें? सिद्धासन में भी एक पाँव नीचे होता है लेकिन राइट पाँव ऊपर होता है। देखिए जब साधना में होते हैं तो हमारी स्टेज कुछ और होती है, उस टाइम हम बॉडी से डिटैच होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन बाद में उसको रिकवर करना चाहिए हमें। फॉर एग्जाम्पल आप ध्यान में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हुए आप बॉडी से डिटैच हो गए, आपको पता ही नहीं है बॉडी का क्या स्थिति है, लेकिन जब आप होश में आए, वापस स्टेज से नीचे आते हैं, अपने मेडिटेशन की स्टेज से वापस आते हैं, तो आपको क्या करना है, सिद्धासन को दूसरे पैर से भी फॉलो करना है, उसको रिकवर करो कैसे भी, अल्टरनेटिवली आपको बैलेंस करना है बॉडी को। राइट राइट। हाँ, बॉडी को बैलेंस करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है सर कि बेसिकली बच्चे क्या करते हैं, बेड पे बैठ जाते हैं मोबाइल लेके, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस होती है तो गर्दन की आगे मुड़ी जाती है। हाँ जी, हाँ जी। तो उनको चेयर पे बैठाना शुरू कर दें? हाँ, बेटर है कि आप चेयर पे बैठाएं। दूसरा तरीका एक और है, इसका अल्टरनेट तरीका जो है, हमें क्या करना चाहिए, हमें बेड के एज पे ले जाके कंधे तक रख के बॉडी को और गर्दन को नीचे लटका देना चाहिए। गर्दन को नीचे लटका के गर्दन की मूवमेंट लेफ्ट एंड राइट ट्विस्ट करने में वो बैलेंस हो जाता है। और ये क्या करना है, हर 40 या 45 मिनट के बाद एक दो बार गर्दन को अगर हम नॉर्मली ट्विस्ट कर लें तो हमारी बॉडी वापस आ जाएगी, इम्बैलेंस नहीं रहेगी। लेकिन ये गैप देना पड़ेगा, हर 40-45 मिनट के बाद आपको गर्दन की एक बार मूवमेंट कर लेनी चाहिए ताकि आपको सर्वाइकल जैसी बीमारी ना आए। ठीक है? ठीक है। हाँ, ये पोस्चरोलॉजी का बहुत बड़ा कंसेप्ट है कि आप काउंटर पार्ट जरूर करते रहें और एक्यूरेसी में रखें। बैठना है तो बॉडी अपराइट स्ट्रेट, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप झुक के बैठे हैं तो आपने जो हमारे मिडल पार्ट थोरैकिक का और लंबर रीजन के बीच का जो पोर्शन है उसको आपने आर्क फॉर्म में ले आए, जबकि ये इंटरनल कर्व है। आपने क्या कर लिया, इसको कर्व को एक्सटर्नल कर्व की तरफ लेके चले गए, आर्क फॉर्म में आ गए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत से लोग फॉरवर्ड बेंडिंग बहुत अच्छे करते हैं, बहुत से लोग बैकवर्ड बेंडिंग बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन परफेक्शन क्या है कि फॉरवर्ड बेंडिंग भी अच्छे से करो और बैकवर्ड बेंडिंग भी अच्छे से करो, ट्विस्टिंग भी पूरी करो, दोनों साइड से बराबर ट्विस्टिंग, अदरवाइज बॉडी डिफॉर्मेशन के 100% चांसेस हैं। ठीक है सर? ओके जी, थैंक यू जी। अब हमें आगे बात करनी है, थोरैकिक केज हो गया, इसके बाद स्केलेटन सिस्टम डायग्राम आप देख ही सकते हैं यहाँ पे। अब हम आएंगे पेल्विक जोन में। ये हमारे सिस्टम को पूरा संभाल के रखता है। अरे यार सॉरी, पहले उसके पहले हमें हाथों की तरफ देख लो। ये हाथों का पोर्शन है पूरा पूरा, इसको एक बार देख लें, अच्छे से समझ लें। ये जितनी भी बड़ी बोन है ये सारी की सारी हमारे शरीर में, आपको ना पता हो, बोन का एक सिस्टम है, अंदर से बोन्स हमारी हॉलो रहती हैं, खोखली रहती हैं थोड़ी थोड़ी, और उनमें बोन मैरो भरा होता है। ये बोन मैरो क्या करते हैं, ब्लड को प्रोड्यूस करता है। रेड ब्लड सेल यहीं से जनरेट होती है, यहीं से पैदा होती है। ठीक है? जैसे ये आपकी हाथ की वो है हेमर है जो, इसमें बोन मैरो बनता है। ऐसे ही फीमर है, ये फीमर में भी आपके बोन मैरो बनता है, स्पाइन में आपके बोन मैरो बनता है, और यही हमारे रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन सेंटर है, फैक्ट्री है ये। इसको भी आपको समझना है। इसके बाद आप अल्ना और रेडियस, जो हमारी मूवमेंट है आगे पीछे की, इसको अच्छे से देख सकते हो कि ये कैसे काम करती है। आप मूवमेंट दे रहे हो, ये फ्लेक्सिबल है, आगे पीछे मसल्स को ट्यूनिंग सेट करती है ये। और ये पोर्शन है हिंजेस, इसमें आपकी मूवमेंट आगे पीछे, क्योंकि इसके बोन की अगर हम बात करें तो हमारे पास मूवमेंट्स के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, जॉइंट्स मूवमेंट बोलते हैं। जैसे फ्लेक्शन है, जब हाथ को मोड़ते हैं अंदर की तरफ तो ये फ्लेक्शन है, और जब हम एंगल को ओपन करते हैं तो ये हमारा एक्सटेंशन है। एबडक्शन में मूवमेंट आती है तो मूवमेंट अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, ये जॉइंट शोल्डर्स की मूवमेंट करता है। जैसे मतलब हम कंधे
नॉर्मली हाथ नीचे की तरफ रहते हैं, लेकिन जब एबडक्शन की मूवमेंट करते हैं तो हाथों को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, बॉडी से दूर लेके जा रहे हैं, राइट। ये बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होते रहेंगे तो साथ के साथ आपको इजी रहेगा समझने में कि क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं हमारे बॉडी पार्ट्स। ठीक है सर, एवरीवन अंडरस्टैंडिंग इट? यस। ओके, तो अभी उसके बाद हमारा एक मूवमेंट है एबडक्शन का। एबडक्शन में क्या करता है, मिड लाइन से हम जैसे दूर होते हैं, ये हो गया एडक्शन। इसमें मूवमेंट जो होती है बाहर से अंदर की तरफ आती है। ऊपर से जो हमारा हाथ नीचे की तरफ आ रहा है, जब हाथ ऊपर उठाया तो हमने एबडक्शन की, वापस आ रहे हैं तो एडक्शन की है। और सर्कमडक्शन होता है जो हमारे रोटेशन, हाथों की रोटेशन है, 360 मूवमेंट कर लेते हैं हम, हाथों को पूरा रोटेट कर लेते हैं, राइट। और रोटेशन का आपको पता ही है, जहां पर भी सॉकेट्स हैं हमारे, उसकी रोटेशन हम लेफ्ट राइट किसी भी ढंग से, जैसे हाथ दोनों तरफ मूवमेंट कर सकता है। हमारे सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल मूवमेंट जो है वो हमारी हाथों की है, पैरों की भी इतनी नहीं है। पैरों की साइड में फैलेगी, आगे पीछे फैलेगी, लेकिन हाथों की मूवमेंट हम मैक्सिमम कर सकते हैं चारों तरफ। ठीक है सर, हर एक चीज, हर एक मूवमेंट का अपना एक कंसेप्ट क्लियर है। परमात्मा ने देखिए कितना बढ़िया शरीर बनाया हम लोगों का, बारीकी से समझे तो बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। अब जैसे एल्बो है, ये हिंज के नाम से जॉइंट है एल्बो का, और इसकी हमरस, अल्ना और रेडियस, इसके साथ कनेक्टिविटी है। मूवमेंट फ्लेक्शन एक्सटेंशन दो है, और इसका मूवमेंट कहां पर देखा जा सकता है, बाइसेप एंड ट्राइसेप की मूवमेंट में देख सकते हैं। ठीक है, घुटने का है, हिंज है, फीमर है, टिबिया है, फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, क्वाड्रिसेप्स है और हैमस्ट्रिंग्स है। इसकी मूवमेंट आगे पीछे की मूवमेंट है जो मसल्स को अटैच करके रखता है। कंपैक्ट है हम मसल से, अगर मसल्स को हटा दे तो बोन कुछ काम नहीं कर पाएगी, और बोन को हटा दे तो मसल्स कुछ काम नहीं कर पाएगी। एक दूसरे का ये कंप्लीमेंट्री है। सारा सिस्टम एक दूसरे को कैसे कनेक्ट करके रखता है और कैसे हमें हेल्दी बना के रखता है, ये हमारा सिस्टम समझ में आता है, राइट। तो शोल्डर्स की मूवमेंट जो है बॉल एंड सॉकेट्स के नाम से है, और इसको हेमरस और स्केपुला, जैसे कंधे के पीछे का ब्लेड, जो ये पोर्शन जो है, ये जो स्केपुला है, इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो ये सारे के सारे जॉइंट्स क्लियर हो गए सभी को? अभी उसके बाद हम आएंगे हाथों की मसल्स के लिए। हाथों की मसल्स में हमें, जैसे यहां पर देखिए रिस्ट में आ गए, ये कार्पल्स हैं। कार्पल्स में 8 हड्डियां होती हैं। ये छोटी छोटी बॉल्स होती हैं जो हाथों को, रिस्ट को ऊपर नीचे करना है, दाएं बाएं करना है, किसी चीज को पकड़ना है, हाथों की मूवमेंट का है। कार्पल्स का है ऊपर नीचे का, साइड का मूवमेंट का, ये हम कार्पल से, रिस्ट बोन से काम करते हैं। मेटाकार्पल्स जो हैं, ये रिस्ट से लेके आगे उंगलियों के जॉइंट तक, ये मेटाकार्पल्स हैं। ये आप गिन सकते हैं, 5 हैं। ठीक है, इसके बाद आगे आता है प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल्स जो होते हैं, रिस्ट जो जॉइंट है, उंगली का पहला भाग जो है प्रोक्सिमल है। इसके बाद आगे आ जाता है मिडल और डिस्टल। जो टिप है हमारी फिंगर्स की, वो डिस्टल है। और ये टोटल जो हाथों का शेप है, यानी कि उंगलियों को जो बोलते हैं, फ्लेंजेस ऑफ फिंगर्स बोलते हैं। इज दैट क्लियर? यप। गुड। अभी हम हाथों का हो गया, सर्वाइकल हो गया, थोरैकिक हो गया, लंबर रीजन हो गया। अब हम आएंगे पेल्विक जोन पे। पेल्विक जोन में ये देखिए, ध्यान से देखो, पेल्विक जोन हमारा क्या काम कर रहा है। ये हमारे सारे सिस्टम को होल्ड करके रखे हुए हैं। हमारा उठना बैठना सारा इसी पे है। स्पाइन का बेस है, टेल को स्ट्रक्चर दे रहा है। ठीक है, तो इसमें जो स्ट्रेंथ है
अगर इनमें से किसी भी एक बोन में कोई डिफॉर्मेशन आ जाए या चोट लग जाए, कई बार आपने सुना होगा मैं बैठ नहीं पा रहा हूं क्योंकि मेरी ये जो टेल बोन है इसमें बड़ा पेन होता है, ये डिफॉर्मेशन ही है, ये असल में अंदर की तरफ झुकी रहती है। अगर गलती से ये सीधी हो जाए तो बड़ी दिक्कत करेगी। और यौगिक प्रैक्टिस में अगर बात करें तो हमारा मूलाधार चक्र का सेंटर भी यही है, यही होल्ड करके बैठा है, इसी के अंदर स्पाइन के अंदर इसी पॉइंट पे कनेक्टिविटी है हमारी ब्रीदिंग की, ईडा पिंगला नाड़ी की, सुषुम्ना की, यहीं से प्राण ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। तो ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबल होती है थोड़ी थोड़ी बोन। अगर हमने इसको ठीक ढंग से नहीं किया, फिजिकल एक्टिविटी नहीं बढ़ाई, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन हमने हर रोज पसीना नहीं निकाला, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया और हमारे शरीर से स्वेटिंग नहीं आई, तो हम लोग रिजिड हो जाते हैं। धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर कफ जमना शुरू हो जाता है, जॉइंट्स मूवमेंट बंद हो जाती हैं और हम बीमार होना शुरू हो जाते हैं। या तो बोन की डिफॉर्मेशन हो जाएगी, सबसे पहले कार्बन डिकम्पोजिशन होनी शुरू हो जाएगी, और जिसकी वजह से हमारी कार्बनिक कंपोजिशन नहीं होने से विटामिन डी की कमी होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये साथ के साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं मैं ताकि आप समझ सकें, ठीक है। ठीक लग रहा है? सारी इंफॉर्मेशन ठीक लग रही है आप लोगों को? हाँ जी, यस। ओके, नाउ अपेंडिकुलर स्केलेटन देयर आर अबाउट 126। हाँ, मैं आपको बताना चाह रहा था अभी, इसी के साथ साथ मैं आपको हाथ के साथ साथ पैरों के बारे में बता देता हूं। पैरों का मूवमेंट भी ऑलमोस्ट सेम है। इसमें हमारी जो अपर पोर्शन है कैलकेनस है, यहाँ पे 7 बोन होती हैं, यहाँ पे 1 बोन कम है जो मूवमेंट के लिए हमारी जरूरत थी, ठीक है। और ये एंकल से जोड़ता है, टेलस जो है एंकल से जोड़ के रखता है आपको। लेटरल है, ये मूवमेंट हमारी पंजाबी एंकल हील से जो होती है, ये मूवमेंट हमारे को रोक के रखती है, ये हमारे को फ्लेक्सिबल बना के रखती है, ठीक है। लेटरल कूनिफॉर्म बोन जो है, ये पोर्शन हमारा मूवमेंट को रखता है और एक्टिविटी बढ़ा के रखता है। टेलस जो है हमारे एंकल को ज्वाइन करके रखता है, और कैलकेनस है जो ये एडी है, ठीक है। मेटाटार्सल बोन है जो हमारे एंकल के जॉइंट से लेके पैरों की उंगली के पास तक जाता है, ठीक है, जहां से उंगलियां सेपरेट होती हैं। उसके बाद प्रोक्सिमल, मिडल और डिस्टल सेम चीज है। और फ्लेंज, टोज, ये फ्लेंजेस जो होते हैं ये आपको जंप करने में, आपको दौड़ने में, फ्लेक्सिबिलिटी में, टोज पे खड़ा होने पे या एडी पे खड़े होने में, इसमें आपकी मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये जॉइंट, इसमें आपकी 1 बोन कम होती है ऊपर, 1 बोन ऊपर हाथों की हथेली, हाथ में जो बोन है उसमें और इसमें 1 बोन का डिफरेंस है केवल। और ये दोनों हाथों की और पैरों के पंजों की जो बोन है, ये इट इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द होल बॉडी बोन्स। ये पूरे शरीर में जितनी बोन्स हैं उसकी आधी बोन है। हाथ की हथेली, हाथ और पैर के पंजे, एंकल्स, ये आधी बोन्स है हमारे पूरे शरीर की। बाय नंबर ऑफ काउंट्स। सॉरी, बाय नंबर ऑफ काउंट्स ना? हाँ, बाय नंबर्स। हाँ, मैं बता देता हूं आपको। आप काउंट करें, लिखें। ऊपर यहां पे कार्पल्स जो हैं 8 हैं, 8 5 मेटाकार्पल्स हो गई, 8 5 13 हो गए। उसके बाद हमारी प्रोक्सिमल्स जो होती हैं 5 हैं, मिडल 5 हैं, और 15 ये हो गई, और 13 ये हो गई, 28 ये हो गई, और नीचे 1 कम कर लो, 27 27 एक हाथ में ये हो गई। तो इस हिसाब से कितना हो गया? 28 दूनी 56, 27 दूनी 54, कितने हो गए टोटल बताओ?
कैन यू हियर? हाँ, एक बार रिपीट करेंगे काउंटिंग जरा एक बार। हाँ जी, कार्पल्स है हमारी 8, हाँ मेटाकार्पल्स है हमारी 5, ठीक है। उसके बाद हमारी आ गई प्रोक्सिमल्स, हाँ प्रोक्सिमल्स है फिर 5, ठीक है। मिडल है 5, हाँ और डिस्टल्स हैं 5। कितने हो गए? 28। 28। और दूसरे हाथ में कितने हो गए? 56 हो गए ना? दोनों हाथ में हो गए 56। हाँ ठीक है। और पैरों में यही मेटाकार्पल्स जो हैं, और ये आगे प्रोक्सिमल्स वगैरह, ये हो जाती है 27। 27 दूनी 54 और 56, ये कितने हो गए सर? 110। 110, 110। हाँ 110 हो गए। अब 110 जब हमारे हाथों में और पैर के पंजों में इतनी बोन हो गई, और मैंने टोटल बोन्स कितनी बताई हमारी बॉडी में? 206 है ना? 206। 6 टोटल। 206। बच्चों में ये 210 होती हैं, और बड़े लोगों में प्रौढ़ में जो होती हैं ये 206 रह जाती हैं। 4 बोन टेल बोन में यहाँ पे मर्ज हो जाती हैं इस पोर्शन में। थोड़ी सी टेल बच्चों की बाहर रहती है, वो धीरे धीरे मर्ज होकर ये सिकुड़ जाती है। ठीक है, क्लियर? यस। अब देखिए, हम पेल्विक बोन की तरफ आ गए। पेल्विक बोन में क्या है? इलम है। ये कौन सी एज में हो जाता है? कौन सी एज तक हो जाता है ये जो टेल बोन में मर्ज हो जाती है बोन्स, 4 बोन्स, वो कौन सी एज तक होता है? ये वाला पोर्शन है, ये आप देख लीजिएगा। हाँ, किस एज तक होता है ये, मतलब कौन सी एज में मर्ज हो जाती है? ये ऑलमोस्ट 13-14 साल की उम्र तक ये टेल बोन गायब हो जाती है। जिसका बॉडी बोन बहुत सॉफ्ट होती है वो थोड़ा लेट चलती हैं, और जो बोन बहुत ज्यादा हार्ड होती हैं वो थोड़ा जल्दी, वो 5 साल तक भी गायब हो जाती है। अच्छा। ये डिपेंड करता है बोन की फ्लेक्सिबिलिटी पे, किस टाइप का है। जैसे फीमेल की बोन थोड़ी देर तक जाएगी, क्योंकि उनकी बोन थोड़ी फ्लेक्सिबल ज्यादा रहती है। ठीक है, ओके। हाँ। तो अब हम बात कर रहे हैं पेल्विक जोन की। पेल्विक जोन में हमारे पास 3 मेजर स्ट्रक्चर हैं: इलम, पबिस एंड स्चिम। ये जो पोर्शन है जो हिप जोन को बैठने के लिए सपोर्ट करता है, यहां से हमारे हैमस्ट्रिंग्स वगैरह कनेक्टेड है, जो हमारे थाइस वगैरह को कनेक्ट करके रखती है। ये सारा पोर्शन हैमस्ट्रिंग का है। ठीक है, और इसके ऊपर जो है हमारा ओब्लिक्स एंड कोर मसल्स हैं, एब्डोमिनल मसल्स इसे बोलते हैं, एब्डोमिनल मसल केज बोलते हैं, वो कंट्रोल करके रखता है। अदरवाइज हमारी बॉडी स्ट्रक्चर बड़ा फैल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे बैठने में, मूवमेंट्स में और पैरों की मूवमेंट्स में हेल्प करती है। और इसकी कनेक्टिविटी यहां पर ये देखिए, जो फीमर है हमारा जो कनेक्ट हो रहा है, फीमर इसी से कनेक्ट हो रहा है। ये जो फीमर है ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी बोन है। दिस इज द लार्जेस्ट वन बोन, और इसमें स्पाइन के बाद सबसे ज्यादा बोन मैरो है, सबसे ज्यादा स्पाइन के बाद ब्लड प्रोडक्शन का फैक्ट्री ये है, सेकंड फैक्ट्री है ये। अगर ये गलती से टूट जाए, कभी एक्सीडेंटल केस में कई बार आपने सुना होगा कि उसके पैर की हड्डी टूट गई और ब्लीडिंग कंट्रोल ही नहीं हुई, जिसकी वजह से डेथ हो गई। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो उसका रीजन है कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन ब्लड की स्पाइन के बाद पे ये पोर्शन करता है, और ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो पाती। और ये सबसे पावरफुल बोन भी है। पूरा अपर बॉडी का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है पेल्विक बोन के साथ। ये जो कनेक्शन है, ये जो जॉइंट है, इसी पे हमारा पूरा बॉडी वेट मैनेज होता है। हमारे पैरों का वेट इतना नहीं होता जितना हमारी अपर बॉडी का वेट होता है, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आपको ये बता दूं, इसकी बॉडी वेट कंट्रोल करने की कैपेसिटी इस बोन की, केवल फीमर की बात कर रहा हूं मैं, इसकी कैपेसिटी टनों में है। इतना वेट ये कैरी कर सकती है, सबसे स्ट्रॉन्ग बोन है ये। ठीक है, इट कैन कैरी टन ऑफ वेट, टन ऑफ।
सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बोन है हमारी बॉडी की और सबसे बड़ी है। ठीक है, सबसे छोटी बोन कौन सी बताई मैंने आपको? ईयर बोन। ईयर बोन। और सबसे बड़ी बोन कौन सी हुई? फेमर। वेरी गुड। तो यहां तक क्लियर हो गया सारा कुछ? यस। ओके, अब आते हैं हम जॉइंट पे। ये है पटेला। पटेला नी कैप जिसे बोलते हो आप लोग, ये हमारे बोन को आगे की तरफ ना जाने देने के लिए है। ये हमारा कंट्रोल करता है आगे बोन ना झटक जाए, नहीं तो हम खड़े नहीं हो पाएंगे। ये कंट्रोल करता है आगे से पीछे ना गिर जाए हम। ठीक है, पैरों के बोन पीछे की तरफ फोल्ड होती है। इसकी फ्लेक्शन किधर से है? इसकी फ्लेक्शन हिप्स की तरफ जाएगी और एक्सटेंशन किधर है? हिप्स से सीधी होने की है। पटेला इसको कंट्रोल करता है। हमारा जो उठना बैठना है सारा इसकी हेल्प से है। और ये कैसे कनेक्टेड हो रहा है? 4 लिगामेंट इसके आगे और 4 लिगामेंट पीछे, यानी कि टोटल दोनों पैरों में 8 लिगामेंट एक पैर में होते हैं। और यही हमारे को स्ट्रेंथ करता है। लिगामेंट समझते हो आप लोग क्या होता है? एक्सप्लेन कर दो एक बार। हाँ, लिगामेंट क्या होता है? मसल्स का हार्ड पार्ट और बोन से फ्लेक्सिबल पार्ट, ये लिगामेंट है जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है मूवमेंट्स में। अगर लिगामेंट मार्शल आर्ट में जब कभी भी हमें किसी को इंजरी देनी होती है सीरियस, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले या तो हम उसकी हड्डी तोड़ेंगे या लिगामेंट तोड़ेंगे या मसल्स को रप्चर करेंगे। मसल रप्चर हुई, ब्लीडिंग हुई, उससे पेन बढ़ेगा, वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा। या फिर लिगामेंट तोड़ेंगे, वो बॉडी कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा, भयंकर पेन होगा। और या फिर हम बोन टूट गई तो वैसे स्ट्रक्चर खराब हो गया, वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा बॉडी को। ठीक है, तो मार्शल आर्ट में उनकी वो होती है। अब इसमें क्या होता है? 4 लिगामेंट आगे की तरफ से, नी कैप के आगे की तरफ से, ये 4 लिगामेंट हैं जो हमारे को एक्सटेंशन में हेल्प करते हैं। और जो पीछे के लिगामेंट्स हैं 4, वो हमें फ्लेक्शन में काम करते हैं, जो पीछे की तरफ पैरों को ले जाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो दोनों का काउंटर पार्ट मूवमेंट होती है एक दूसरे की, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। तो वो हमारे यहाँ पे जॉइंट को कंट्रोल करता है। और पटेला क्या कर रहा है? ये पैर है ना, जब हम पीछे से आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, एक सर्टन स्टेज के बाद आगे नहीं जाता। अगर हम ज्यादा स्ट्रेच डालते हैं, सपोज करो आपने पैर सीधा करके टेबल पे रखा और कोई बच्चा आपके घुटने के बीच में कूद जाए तो क्या होगा? टूट जाएगा। ये जो कंट्रोल है, जो पैर आप सीधा करके टेबल पे बैठे हो, सोफे पे बैठे हो और पैर फैला के टेबल पे बैठे हो, तो पटेला की हेल्प की वजह से आप वहां पे रुके हुए हो। अगर ये पटेला यहां पर ना हो तो आपका पैर कहां जाएगा? कहां जाएगा? आपके घुटने आगे की तरफ भी फ्लेक्शन कर जाएंगे, जो नहीं होने चाहिए। गॉट इट? ओके, नाउ आगे आती है बारी टीबिया की और फेबुला की। देख पा रहे हैं टीबिया और फेबुला? सर एक केस मैंने देखा था जिसमें पूरा का पूरा जो नी से ना नीचे का पांव था पूरा 90 डिग्री रोटेट हो गया था। वो किसका? किसी पर्सन का, हमारे ऑफिस में ही, जो नी से नीचे का पूरा पोर्शन है फ्रॉम पटेला, वो 90 डिग्री रोटेट हो गया था। हाँ, तो वो खत्म हो गया ना उसका पोर्शन। बट वो फिर ठीक हो गया, डॉक्टर ने उसको करेक्शन कर दिया उसका, तो 2 महीने बाद ठीक था। जब ये ये लोकेशन से हट जाएगा तो ये मूवमेंट हो जाएगी, बाद में इसको सेट कर दिया जाएगा। होता क्या है, घुटनों की नी रिप्लेसमेंट में करते क्या है लोग? नी रिप्लेसमेंट में ये जो आपकी फीमर है और ये जो आपकी टिबिया है, इन जो दोनों के बीच का स्पेस कम हो जाता है और यही पेन करता है। आर्थराइटिस में इसमें यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है और ये टूटना शुरू हो जाता है, कमजोरी आ जाती है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको समझनी है। तो होता क्या है यहाँ पे, ये पटेला जो है सपोर्ट करता है आपको वेट भी कैरी करने में। अगर ये हट गया तो आपने जो बताया 90 डिग्री वापस फोल्ड हो गया, तो ये पोर्शन आजकल साइंटिफिकली
हम आर्टिफिशियल भी लगा देते हैं, लेकिन सूनर और लेटर जो नेचुरल बोन स्ट्रक्चर होता है वो कभी नहीं मिल पाता, वो पूरी सपोर्ट नहीं मिल पाती। टेम्परेचर भी है, अब सर्दी में बड़ा पेन होता है ऐसी नी रिप्लेसमेंट वगैरह में, और गर्मी में एकदम इरिटेशन होती है, ईचिंग होती है ऐसी जगह पे। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ हाँ। हाँ, तो ये चीजें हैं हमारी जो समझने की। तो अभी मैक्सिमम लोगों को हम देखते हैं कि 50-60 इयर्स के बाद में रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ रही है आजकल, बहुत हाँ, लोगों को पड़ रही है। लेकिन ये इसकी कभी भी जरूरत ना पड़े, इसका साइंटिफिक रीजन मैं आपको बता देता हूं। इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि जब हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, रोजाना हम स्वेटिंग नहीं करते आफ्टर एक्सरसाइजेस, तो होता क्या है, हमारे मसल्स जो है डाइल्यूटेड फॉर्म में आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि मसल्स की स्ट्रेंथ कम हो गई। और ये जो पोर्शन है, जो फीमर का और टिबिया के बीच का जो पोर्शन है, इसके बीच में हमें एक मसल होती है जो डाइल्यूट होने की वजह से इनका जो बॉडी का वेट है, बॉडी का वेट नीचे की तरफ ज्यादा नजदीक आ जाता है टिबिया, और फिर ये जो फीमर है टिबिया से रगड़ खाने लगती है। इस वजह से हमारे नी पेन बढ़ते हैं, जिसकी वजह से हमें नी रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है। गॉट इट? कैन यू हियर मी? Yes, sir. ओके, तो ये रीजन है। दूसरा, अब हमें टीबिया के बारे में बात करते हैं। टीबिया भी वही काम करता है। देखिए, ये भी हमारी एक बड़ी बोन में से है, इसका मतलब बोन मैरो यहां भी होता है, और यहां से भी हमें ब्लड सप्लाई मिलती है। अब विश्वास हुआ हमें अपने बॉडी का पूरा कि हम कितने भाग्यशाली, परमात्मा ने कितना साइंटिफिक बॉडी बना रखी। कोई भी बॉडी का पोर्शन ऐसा नहीं है जिसका हम यूज नहीं करते। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में, और हम क्या करते हैं, इसी के साथ अन्याय करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? देखो, भगवान ने हमें इतना सुंदर मंदिर बना के दिया, इस मंदिर की साफ सफाई करते नहीं और उम्मीद करते हैं भगवान आके इसमें बैठ जाए। ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। गंदगी में तो कोई भी नहीं बैठता, कुत्ता भी है ना, पूंछ मार के बैठता है, और ह्यूमन भी अपने शरीर में कचरा डाल रहे हैं। बर्गर खा लिया, पिज्जा खा लिया, जिससे मेटाबॉलिज्म खराब हो गया, बाद में बीमारियां बढ़ गई। उससे बचने के लिए हमें इसका ध्यान रखना है, इस शरीर का, इस मंदिर का। और इस मंदिर में बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मंदिर में जाते हैं ना, हम झाड़ू भी करते हैं, पोछा भी करते हैं, तो ऐसे ही हमारे जितने भी सिस्टम हैं उसको हमें प्योरीफाई करना होता है। भाग दौड़ करेंगे, जॉइंट्स मजबूत रहेंगे, मसल्स मजबूत रहेंगी, एक्सरसाइज करेंगे, योगा प्रैक्टिस करेंगे, लंग्स एक्टिवेट होगा, ब्रीदिंग बढ़ेगी। तो हम बहुत सारी चीजें, बहुत जरूरी है कि हमें रेगुलर फिजिकल एक्टिव रहना है। जो लोग फिजिकल एक्टिव नहीं होंगे उनका सबसे पहले एक चीज होगी बॉडी डिफॉर्मेशन, मसल्स डाइल्यूशन, ओवरवेट, बॉडी का स्ट्रक्चर बिगड़ना शुरू हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म डाउन होगा, कफ जमना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह से हमारे शरीर में किसी को आर्थराइटिस आएगा, किसी को डायबिटिक होगी, किसी को बॉडी डिफॉर्मेशन में साइटिका या कुछ और, इस टाइप से हर एक सिस्टम में कोई ना कोई बीमारी आ जाती है। ठीक है जी। अब आप और कुछ पूछना चाहेंगे इसमें? हाँ सॉरी, मैं ना 2-3 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था। तो जब हम नीज पे थे, जैसे एक क्वेश्चन है कि नीज को फिर हम लोग मेंटेन कैसे कर सकते हैं गैप को, सिर्फ एक्सरसाइज से? हाँ, डेफिनेटली 3 चीज का डिपेंड करता है। एक आपकी बॉडी वेट, बॉडी वेट अगर आपने मेंटेन करके रखा, फिजिकल एक्टिव रहे, तो आपका ग्रेविटी की वजह से ऊपर का जो वेट है वो टीबिया पे नहीं जाएगा। और एक्सरसाइज करने की वजह से जो बीच में जेल का रोल प्ले करती है मसल्स, एक्सरसाइज करने से वो मसल डाइल्यूट नहीं होगी, वो मजबूत रहेगी। ये मोटा मोटा रीजन है इसका। ठीक है, ओके। ये हमारे लिए बॉडी में मूवमेंट बहुत जरूरी है, फिजिकल एक्टिव होना बहुत जरूरी। जो लोग ऑफिस में बैठते हैं उनको दिन में कम से कम, किसी और के लिए नहीं, अपने ऊपर एहसान करना है। कृपा कैसे होगी? करो और पाओ। ठीक है, कृपा तभी होगी, कोई किसी को कुछ नहीं देता। कृपा हो गई
का मतलब ये है करते रहो और पाते रहो, करते रहो, खोदो और पानी पियो। कुआं खोदोगे तो पानी मिलेगा, अपने आप तो नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसी भी चीज केवल हमारे हार्ट में है कि वो ऑटोमेटिकली चलता है, ब्रीदिंग ऑटोमेटिकली चलती है, ब्रेन अपने आप काम करता है, लेकिन उसमें भी हमें एफर्ट्स इसलिए करने पड़ते हैं उनकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, लाइफ को बढ़ाने के लिए, उसमें भी हमें काम करना पड़ेगा। इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं है, ठीक है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें? मैं एक चीज जानना चाहता हूँ राठी सर जी, बोलिए। आई वांट टू जानना चाहता हूँ कि जनरली जैसे हम लोग कहते हैं जो बहुत बॉडी फ्लेक्सिबल है, तो लोग कहते हैं जब बहुत फ्लेक्सिबल है उसकी बॉडी जो हड्डी है वो बहुत ज्यादा फ्लेक्स कर जाती है। बेसिकली जो डिफरेंस होता है योगा आसन में, योगा जो करते हैं कुछ लोग बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी वाले योगा कर लेते हैं, कुछ लोग बहुत ट्राई करते हैं तो नहीं कर पाते। ये क्या मसल्स के कारण डिफरेंस कर होता है या कुछ बॉडी में ऐसी चीजें स्केलेटन इसमें कोई कारण हो पाता है? अब इसके बाद जो डिफरेंट आसन में जो चेंज कुछ लोग कर पाते हैं कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, जैसे आपने कहा कुछ लोग फॉरवर्ड बेंड बहुत अच्छा कर लेते हैं, बैकवर्ड बेंड करने में उनको दिक्कत आती है, परेशानी आती है। इनिशियल स्टेज की बात मैं कर रहा हूँ। आपका ये क्वेश्चन बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है ये। ऐसा क्वेश्चन है ना आज तक मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा ही नहीं है, रेयर लोग हैं जो ऐसा पूछते हैं। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं, हमारी जितनी बॉडी स्ट्रक्चर्स है ना, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर 8 टाइप की हैं, 8 टाइप की बॉडी स्ट्रक्चर हैं। किसी की बॉडी स्ट्रक्चर क्या होगी, किसी का धड़ बड़ा होगा, किसी का पैर बड़ा होगा, किसी का पेल्विक जोन चौड़ा होगा, जैसे फीमेल का पेल्विक जोन ज्यादा चौड़ा होता है, ठीक है। किसी की चेस्ट ज्यादा चौड़ी होगी, किसी के हाथ बहुत लंबे हो जाएंगे, किसी गर्दन ज्यादा लंबी होगी। तो ये इस टाइप से हमारे 8 बॉडी स्ट्रक्चर हैं। इसीलिए योगियों ने 84 लाख आसनों का प्रावधान रखा कि एक पोस्चर कोई नहीं कर पाता तो वो उसका अल्टरनेट है, ठीक है, उसका विकल्प रहता है कि आप ये नहीं कर पाओ तो दूसरा कर लो। बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं। फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूं, किसी के पेल्विक जोन है ना, ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से बहुत से लोग पूर्ण मत्स्येंद्र आसन कर लेते हैं, यानी कि आधा पद्मासन लगाने के बाद पैर को ट्विस्ट करके दूसरी साइड से पकड़ लेते हैं, पूर्ण मत्स्येंद्र आसन। मत्स्येंद्र आसन तो आपने किया भी है, प्रैक्टिस की होगी, मैडम ने बताया होगा, आपके इंस्ट्रक्टर ने। तो वो स्ट्रक्चर एक अलग ही है, वो फ्लेक्सिबिलिटी के ग्राउंड पे है। मूवमेंट करते रहो फ्लेक्सिबल बने रहोगे, मूवमेंट नहीं करोगे फ्लेक्सिबल नहीं रहोगे। लेकिन इसके साथ साथ बॉडी स्ट्रक्चर भी मैटर करता है। किसी का फीमर बड़ा होगा, किसी का टिबिया बड़ा होगा। ये स्ट्रक्चर आपने देखे होंगे बहुत सारे, मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात। यस, समझ रहे हैं। तो आपको इसको अच्छे से समझना है। हमारे 8 बॉडी टाइप हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक साइड से आप कोई चीज कर पाते हो, दूसरी साइड से नहीं कर पाते, ऐसी भी पोजीशन आती है करने में। हाँ, ये लेफ्ट साइड से सपोज मान लिया, राइट साइड से आपने ये ले गया, आपका हाथ यहाँ आ गया, बट लेफ्ट साइड से कभी कभी आने में दिक्कत होती है, वहां नहीं आ पाता है चीजें। हाँ, मैं बताता हूँ। उसका रीजन ये है कि हमने क्या किया, अपनी बॉडी को डिफॉर्म कर लिया। परमात्मा ने तो हमें बड़ा अच्छा बनाया था। अब हम क्या करते हैं, बेड पे लेट रहे हैं, एक साइड से कोनी लगा के, टेक लगा के लेट गए, और दूसरी साइड से हमने टेक नहीं लगाई। अब होगा क्या, एक साइड से हमारी स्पाइन जो है ना ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगी, दूसरी साइड से वही रिजिड हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जब आप अपने पैरों को खोल के अल्टरनेट टो टच करोगे या कुछ मूवमेंट करोगे, तो एक साइड से तो आपका पैर का टो टच हो जाएगा, दूसरे साइड का पैर टो टच नहीं होगा। एम आई राइट? दिस इज राइट आंसर? यस यस। तो ये बॉडी डिफॉर्मेशन है, इसे हमें शुरू से ही समझना है, शुरू से ही समझना है।
और कोई क्वेश्चन है स्केलेटन में? आपने नीज के लिए 3 इश्यूज बताए थे, रीजंस पे एक ही बताया, बॉडी वेट, और बाकी 2 क्या है? बाकी 2 हैं जो ग्रेविटी है, एक हो गया। दूसरी बात यह है कि हम है ना एक्सरसाइज करेंगे तो मसल टोन रहेगी, बोन टोन रहेगी, तो उसकी वजह से एक तो 2 चीज है, एंटी ग्रेविटी होना है और एक ग्रेविटी का ग्राउंड है। ग्रेविटी काम कर रही है हमारे बॉडी वेट पे कि भाई ऊपर से कोई चीज नीचे को जाना, बॉडी का वेट हमारा नीज पे आता है, ठीक हो गया। लेकिन अब इसका एंटी ग्रेविटी क्या है, जो मसल्स की स्ट्रेंथ है वो एक जेल ग्राउंड देगी, स्ट्रेंथ देगी कि ग्रेविटी को झेल सके, एंटी ग्रेविटी रोल प्ले करेगी मसल। जो घुटनों के बीच में जेल होता है, जिसे आप कहते हो ग्रीस खत्म हो गया, वो ग्रीस नहीं, असल में मसल्स की एक फॉर्म होती है जो मेंटेन करके रखती है आपके बॉडी वेट को। अगर वो एक्सरसाइज करते रहोगे, वो स्ट्रॉन्ग रहेगी, डाइल्यूट नहीं होगी, तो वो बॉडी वेट को मैनेज कर पाएगी। अगर ये कमजोर रही तो फीमर आपकी टीबिया पे आके बैठ जाएगी। अब आप कुछ भी करोगे तो वो रगड़ खाएगी और पेन बढ़ेगा। गॉट इट? स्केलेटन कंप्लीट हुआ? किसी का कोई क्वेश्चन है? अभी पूछ ले सर। एक क्वेश्चन है, लाइक अभी आपने वेट का एक बताया, नी पेन का, मतलब एक वेट रीजन बताया। कभी कभी मतलब ऐसे भी लोग हैं कि जिनका वेट तो ज्यादा नहीं है, मतलब वेट नॉर्मल ही है, या फिर उन्होंने वेट कम किया है बट फिर भी उनको नी पेन का प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, तो उसमें क्या हो रहा है कि हमारे जो घुटने हैं, पहले वेट ज्यादा था, उन्होंने रप्चर कर लिया उस मसल्स को और फीमर टीबिया पे आके टिक गया। अब इसकी रिकॉग्निशन कैसे होगी? तो इसकी कुछ स्पेशल एक्सरसाइज हैं जो हमें करनी चाहिए, ठीक है। उसमें क्या है कि दोनों हाथों को दोनों घुटनों के, दोनों पैरों के बीच में, मतलब टीबिया के और फीमर के बीच में जो जॉइंट है वहां पे रख के इस पैर को ऊपर नीचे खींचना है। तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे यहाँ की मसल्स को टोन करना शुरू करेगा और वापस सेटल होना शुरू हो जाएगी। बट इट विल टेक लॉन्ग टाइम, बिकॉज कोई चीज डैमेज हो जाती है और बाहर निकल जाती है तो उसको रिलोकेट होने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है। हमें क्या करना है, एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज करनी है। फॉर एग्जांपल आप लेट जाओ, लेटने के बाद आपने किसी को, आपने बेड पे देखा कि खींच दी है, किसी के घुटने का ऑपरेशन होता है या पेन बढ़ता है तो वो क्या करते हैं, लेट जाते हैं, उसके पैर के एंकल पे पुली के साथ वेट लटका देते हैं ताकि वो खिंच बढ़ जाए, उसमें वैक्यूम पैदा हो और वहां पे जो जेल बाहर निकला है वो वापस रिलोकेट हो जाए। ये उसका एक प्रिंसिपल है, लेकिन इसका एक्यूरेट प्रिंसिपल ये है कि आप एक्सरसाइज करते रहो और उसको मजबूत बना के रखो, उसमें इतनी कमजोरी मत आने दो कि ये घुटने आपस में रगड़ा खाने लगे। गॉट इट? इज दैट क्लियर? यस सर, थैंक यू। हाँ, आगे बढ़े। One more question. What is the reason behind our pelvic? What is the reason behind? Scoliosis. Sorry, I couldn't hear. Scoliosis is the spinal curve because बहुत सारा लोग को है the spine is a big curve. हाँ, एग्जैक्टली। आपको मैंने बताया था कि हमारा जो बॉडी स्पाइन का जो शेप है वो 3 की फिगर में है, ध्यान से देखोगे पता चलेगा, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी चेयर पे बैठे हैं हम, एक हाथ को हमने चेयर हैंड पे रख लिया और हम झुक के बैठ के काम कर रहे हैं, एक हाथ हमारा नीचे रहता है, दूसरा हाथ हमारा टेबल पे ऊपर आ गया और हम कुछ लिख रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, हम अपने बॉडी को इम्बैलेंस कर रहे हैं। अब हमारा कर्व है ना, एक साइड में टिल्ट होना शुरू हो गया, अगर हम इसको वापस नहीं रिसेटल करते तो वो स्पाइन कर्व आ ही जाता है। कमर के साथ लग गए, दीवार के साथ लग गए तो हमारा जो ये आर्क फॉर्म है ये बन गया, स्पाइन कर्व में आ गई बिल्कुल। उसका जो बीच में कर्व था, इंटरनल कर्व था,
वो हमारा एक्सटर्नल कर्व में बदल के आर्क फॉर्म में आ गया। ये डिफॉर्मेशंस है और ये चीज हमारे इस पोर्शन में भी आती है। कैन यू सी दैट माय कर्सर? आप देख पा रहे हैं इसे? यस देख रहे। हाँ, तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, एक एज के बाद उनकी जो स्पाइन है ना, वो टेल से इस पोर्शन से कर्व लेना शुरू कर देती है और वो टेढ़े हो जाते हैं, वो सीधे ही नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, शुरू की प्रैक्टिस में कभी झटका लगा, इस चीज को इग्नोर नहीं किया, थोड़ा बहुत पेन था, बाद में वो डिफॉर्मेशन बढ़ती चली गई। एक साइड से स्पाइन की कर्व ऐसे घूम गई, दूसरी साइड से वो इंटरनल कर्व ले गया, तो इसकी वजह से आर्क फॉर्म आ गई यहां पर। फिर वो प्रॉब्लम आ गई, एक साइड से टिल्ट होते गए, दूसरी साइड से टिल्ट नहीं हुई, बस इम्बैलेंस। उसमें कहा गया है, योगा में कहा गया, जब हम लोग करते ऊर्ध्वमुख श्वान आसन करते हैं, अगर आप ऊर्ध्वमुख श्वान आसन लगातार करते रहेंगे तो आपको कभी ओल्ड एज में आपका डिफॉर्म नहीं होगी, कभी स्पाइन आगे की तरफ नहीं झुकेगी। एग्जैक्टली आपने जैसा आपने देखा है, जब भी हमारी स्पाइन होती है ना, ये एज इस शेप में होती है, ध्यान से देखो, 1 2 3 की फिगर में होगी। अब आप जब भुजंगासन कर रहे हैं, भुजंगासन में आप ये मूवमेंट जो दे रहे हैं, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, तो इस पोर्शन पे आप ऑटोमेटिकली इतना प्रेशर डाल रहे हैं कि ये फ्लेक्सिबल बनी रही। और आपको ये बता दूं, हमारी पूरे शरीर की फिटनेस का ग्राउंड जो है वो 3 ग्राउंड पे है। 3 चीज उसके लिए जरूरी है, स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अगर ये तीनों चीजें हमारे साथ हैं तो हम बूढ़े नहीं होंगे, कभी भी जिंदगी में बूढ़े नहीं हो सकते। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करनी जरूरी है, स्ट्रेंथ जरूरी है और स्टेमिना जरूरी है। अगर ये तीनों चीज हमारे पास हैं तो हम बूढ़े नहीं हैं किसी भी हालत में। और अगर ये नहीं है तो हम चाहे 10 साल के हैं और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, हमारे अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, स्टेमिना नहीं है, तो हम क्या है, बूढ़े हैं। गॉट इट? यस। और कोई क्वेश्चन है आपका? मेरी आंटी हैं, उनको फीट में फ्रैक्चर हुआ था, आपकी उनका प्लास्टर खुल चुका है और डॉक्टर ने भी कह दिया ठीक है। फीट में हेलो 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 हाँ जी बोलिए। हेलो जी बोलिए। हाँ जी, मेरी एक आंटी हैं, उनको ये फ्रैक्चर हुआ है पैर में नीचे के, अभी उनको 1.5 मंथ हो गया, उनका प्लास्टर उतर गया है। फीट में हुआ था, जो साइड का एकदम एंकल लेंथ का रहता है और बीच की एक हड्डी में प्रॉब्लम हुई थी, पर अभी भी उनको चलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए देखिए, अगर बोन प्रॉपर जुड़ी है, हालांकि कोई भी हड्डी जैसे धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, और एक बार टूट जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। ओके सर। होता क्या है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें नेचुरल फॉर्म में रहना है, क्योंकि जब भी हमारी बॉडी दोबारा से जॉइंट बनाएगी, कहीं भी कनेक्शन होगा, तो एक्यूरेट उस पहले वाली लोकेशन पे तो नहीं आ पाती। ठीक है। और नर्वस सिस्टम हमारा बड़ा सेंसिटिव होता है, क्योंकि आपको पता ही है कि ये जाल की तरह फैला हुआ है पूरी बॉडी में, और हर एक चीज से कनेक्टेड है, मसल से भी, स्किन से भी, बोन से भी। जब कहीं कैल्शियम कम्पोजिशन हो गई बोन जॉइंट होने में, तो वहां पे एक एक्स्ट्रा एक कनेक्शन जॉइंट होता है, ओवरलैपिंग होती है उस पर, ताकि वो और ज्यादा सिक्योर रहे। थोड़ी सी कैल्शियम कंपोजिशन ज्यादा होती है, वो सपोर्ट करती है। नेचुरल स्ट्रक्चर तो नहीं रहा ना वहां पे। अब वहां पे जो मसल्स हैं जी सर, वहां पे जो टिश्यूज हैं उस पे पेन आता है। इसका फार्मूला क्या है, इसको क्या करना चाहिए? अब या तो मसल्स अपनी जगह छोड़े, या वो हड्डी अपने आप घिस के वापस रिसेटल हो। ये दोनों चीज में एक ही ऑप्शन रह गई, हड्डी तो हिलेगी नहीं, हड्डी तो सबसे फ्रेम है, वो तो टूटेगा नहीं। ठीक है ना। अब क्या करेगा, मसल्स अपनी लोकेशन को सेटल करेगी, वो टाइम लेगी।
और वो कितना टाइम लेगी, जैसे अभी 1 महीना हुआ है, 2-3 महीने के बाद मसल्स अपने सेटलमेंट कर लेगी, क्योंकि मसल्स का जो टाइमिंग होता है वो हड्डी टूट गई, हड्डी 1 महीने में जुड़ जाती है, मसल्स टूटती है तो 2 महीने तक का टाइम लेती है, लिगामेंट टूटता है वो 6 महीने से 2 साल तक रिपेयर होने में टाइम लेता है। यानी कि ये है, जितना ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर होगा, जितना ज्यादा सॉलिड होगा, वो जल्दी रिकवर होगा, और जितना माइक्रो लेवल पे जाओगे उतना लेट रिकवर होगा। गॉट इट? ओके सर, ओके सर। हाँ सर, तो ये 2 मंथ्स या जैसे आपने कहा 2 मंथ्स के बाद रिकवर हो गया, तो क्या उनको उस समय कम वॉकिंग या कोई भी कम फिजिकल वर्क करना चाहिए? देखो, नया जॉइंट है, अब कोई चीज नई जुड़ती है जी सर, और नहीं डालते, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आप इसके साथ साथ एक और काम करें, उनको बोलना कि आप रोज आना गर्म पानी नमक डाल के उससे पैरों की सिकाई करें, तो वहां से मसल्स अपने आप है ना सेटल होना, थोड़ा जल्दी सेटल हो जाएंगे। ओके सर, ठीक है, ऐसा कर लें। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी, आगे बढ़े। यस यस सर। जी सर। ओके, तो हमारा स्केलेटन सिस्टम अब कंप्लीट हुआ। यस। कैसा लगा आपको ये स्केलेटन सिस्टम का एक्सप्लेनेशन? गुड सर। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो, यू कैन ड्रॉप द मैसेज ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, तो अभी हम चल रहे हैं मस्कुलर सिस्टम पे, उसके बाद हमारा मस्कुलर सिस्टम आता है। ये हमारा मस्कुलर सिस्टम है। कैन यू सी दैट? नो प्लीज enlarge it. ओके, नो सर, आई थिंक यू नीड टू रीशेयर इट अगेन। ओके, दोबारा कर देते हैं। Muscular system. Now it is okay? अभी भी नहीं। Still gone back to the same body system pictures. Okay. Stop sharing. Now? Yeah, we can see it. Okay. चलिए, अब थोड़ा सा आपको जो इतना खूबसूरत शरीर हमारा है, हड्डियां तो दिखेंगी तो हम भूत प्रेत लगेंगे, ठीक है। अब हमारी बॉडी की जो सुंदरता है किसकी वजह से है? किसकी वजह से एक मस्कुलर आदमी अट्रैक्टिव होता है, और किसकी वजह से बेडोल शरीर हमारे को इन्फीरियरिटी की तरफ ले जाता है? अब उसके बारे में जानना शुरू करते हैं, ठीक है। सभी देख पा रहे हैं अपने मसल्स को? ये हमारे बॉडी का सबसे हैवी सिस्टम है। हमारी बॉडी का सबसे हैवी सिस्टम कौन सा है? एवरीवन कैन लिसन मी? Yes, sir, we can. And rest of others, please go on mute in case because there's some sound coming in. Yes, sir, go ahead. Okay. अब ये देखिए, हमारे शरीर में लगभग 6000 मसल्स हैं, और ये हमारे बॉडी का मैक्सिमम पार्ट है। बॉडी के वेट में सबसे ज्यादा मसल्स का वेट होता है, ठीक है। गॉट इट? हमारी सारी खूबसूरती इसी से टिकी हुई है। हम चाहे कुछ भी कर लें, अगर ये शेप में है, स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो हम सुंदर हैं, हम फिट हैं, हम हेल्दी हैं। इसी के अंदर हमारा सारा सिस्टम जुड़ा हुआ है, ठीक है।
हमारी मूवमेंट्स हैं, खाली बोन एक्टिव नहीं रह सकती, तो ये मसल्स हमें सपोर्ट करता है शेप देने में, एक्टिविटी करने में, स्ट्रेंथ देने में, सर्कुलेशन में भी ये मसल्स हेल्प करती हैं, और हमारे नर्वस सिस्टम में भी ये सपोर्ट करती है। हर चीज में मसल्स का रोल है, ठीक है। इसमें कुछ होती हैं स्ट्रेट मसल्स। स्ट्रेट मसल्स जैसे हमारे बाइसेप्स हैं, ट्राइसेप्स हैं, हैमस्ट्रिंग्स हैं, ये स्ट्रेट मसल हैं, सीधी सीधी मसल्स हैं। कुछ होते हैं कॉम्प्लिकेटेड मसल्स। कॉम्प्लिकेटेड मसल्स में कौन कौन सी आती हैं? जैसे हार्ट हो गया, जैसे लंग्स हो गए, जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गई, ये कॉम्प्लिकेटेड मसल्स हैं। ये आसानी से हमारे को समझ में नहीं आती है। एम आई राइट? कौन कौन सी मसल्स हैं? स्ट्रेट मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स, ये भी मसल्स में आती है, यूरिनरी ब्लेडर्स, इंटेस्टाइन, स्टमक, ये हमारी मसल्स हैं। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारा हाथों के बारे में बता दिया जो स्ट्रेट मसल है, हैमस्ट्रिंग के बारे में बता दिया स्ट्रेट मसल है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले गर्दन की। गर्दन की मसल्स में हमें क्या क्या मिलता है? क्या क्या देख सकते हो आप गर्दन में? अच्छा चलो मुझे ये बताओ, गर्दन की मसल्स हैं, क्या आप गर्दन की मसल्स हैं तो मूवमेंट कर पाते हो लेफ्ट राइट ऊपर नीचे? रेस्पॉन्स दो। मूवमेंट करते हैं। हाँ सर। ये मूवमेंट्स हमारे लिए जरूरी है। अब इसमें क्या क्या काम करता है? ट्रेपीजियस, ये देखिए ट्रेपीजियस मसल जो है ये आपके शोल्डर्स को कंट्रोल करती है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेनोक्लाइड मास्टोइड्स, ये ऊपर के आपके गर्दन को दोनों साइड के ये स्ट्रेनोक्लाइड से जो हैं ये हमारी गर्दन की मूवमेंट को देखती है। लेफ्ट साइड में भी उतनी मसल्स हैं, राइट साइड में भी उतनी मसल्स हैं जो हमें ट्विस्ट करने में हेल्प करती है, लेफ्ट और राइट की मूवमेंट करने में। और इसी मसल से हम ऊपर नीचे भी देख सकते हैं, ठीक है। ट्रेपजीएस मसल है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये ट्रेपजीएस मसल है, ये आपको सपोर्ट करती है पीछे से आगे से, ठीक है। बाइसेप्स का आपको बता दिया। ये डेल्टोइड जब भी हम लोग नेक रोटेशन हमारे कंधे को और सॉकेट को कंट्रोल करती है। ये हेलो से जो कंधा है ये हमारे मसल्स को ज्वाइंट करके रखता है, और इसके अंदर एक स्ट्रेटम मसल होती है जो हमारे लिगामेंट्स को सपोर्ट करता है हाथ की मूवमेंट के लिए। जब कई बार आपने देखा होगा जिम में हम एक्सरसाइज करते हुए आपके कंधे में पेन होता है, उसके बाद आपके कंधे की मूवमेंट रुक जाती है, आप कंधा उठाओगे तो दर्द होगा। तो अक्सर क्या होता है कि हमारी पूरी बॉडी एक बहुत कमाल की नीटिंग फॉर्म है, वो एक जाल बना हुआ है, जैसे स्वेटर बुना होता है ना, ये मसल्स ऐसे ही बुनी हुई है हमारे शरीर में, एक दूसरे से ऐसे कंपैक्ट ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है कि एक दूसरे को सपोर्ट भी करती हैं और एक दूसरे की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट भी करती हैं। अगर एक को प्रॉब्लम आ रही है दूसरी सपोर्ट करने के लिए तैयार रहती है, अगर ये सपोर्ट ना मिले तो दिक्कत ज्यादा है। गॉट इट? तो हमारे जो ये कंधे से मसल निकल के जा रही है, बीच में से टीयर करके डेल्टोइड मसल को टीयर करते हुए अंदर से एक मसल जाती है बोन के बीच में से, जो हमारा जो जॉइंट है कंधे का उसके बीच में से स्ट्रेटम मसल जा रही है, वो यहां से निकल के एल्बो तक पहुंचती है, और इतना सीवियर पेन होता है उसकी वजह से। आपने एल्बो टेनिस टाइप की बीमारियां सुनी है? टेनिस एल्बो, क्रिकेट एल्बो सुनिए इसमें दर्द होता है, टेनिस जो हाथ से ज्यादा यूज करते हैं इसको। हाँ, ऐसी हमारी मसल्स हैं जो बोन के बीच में से होके जा रही हैं और सपोर्ट भी कर रही हैं, हर्डल नहीं पैदा कर रही, वो मूवमेंट्स को क्लियर करते हुए हेल्प कर रही है मूवमेंट्स के लिए। जबकि अगर नॉर्मल देखा जाए, कहीं किसी चीज में कोई चीज निकल के जाती है तो बीच में ऑब्स्टेकल फील होता है, लेकिन मसल्स और बोन आपस में कितना कोऑर्डिनेट करके चल रहे हैं, परमात्मा ने स्ट्रक्चर कितना बढ़िया बनाया हमारा, ये देखने की चीज है।
देखो बहुत सारा है, 6000 मसल्स को एक्सप्लेन करना, एक एक टिश्यू को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होता है। हमें जो काम काम की चीज है उस पर बात करनी है, ठीक है। शोल्डर्स मसल्स हैं, स्कैपुला को सपोर्ट करती हैं, आगे पीछे की मूवमेंट को कंट्रोल करती है। जैसे हमारी सबसे बड़ी मसल्स में एक तो है कंधे की स्कैपुला को जो रोम्बॉइड है, ये वाला जो पोर्शन है आप देख सकते हैं रोम्बॉइड, इसको सपोर्ट करता है स्कैपुला को। आपके हाथों की मूवमेंट है ऊपर नीचे की है, अलग अलग डेल्टोइड है ऊपर नीचे कर देगा, रोम्बॉइड है ये आपके कंधों को आगे पीछे की मूवमेंट को सपोर्ट करेगा, ठीक है। ये आपके डोर्सी मसल्स हैं, ये आपके साइड को कवर करके रखता है, मजबूत बना के रखता है। बॉडी बिल्डर के देखे होंगे साइड में एजेस निकाल देते हैं मसल्स में, ठीक है। तो ये फ्लेक्शन में हमारी सपोर्ट करता है, एक्सटेंशन में हमारी सपोर्ट करता है। और नाम भी देखो एक्सटेंसर कार्पी रेडिलस, ये देखो ये नाम भी ऐसे जॉइंट के दे दिए कि आपको समझ में आए कि ये एक्सटेंशन के लिए काम कर रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ देखो तो ध्यान से फ्लेक्शन, तो ये फ्लेक्शन का काम कर रहा है। तो ये बड़ी इजीली समझ सकते हैं कि हमारे क्या क्या काम कर रहे हैं। हमने जॉइंट के नाम से जो मूवमेंट की सपोर्ट कर रहे हैं किसकी वजह से कर रहे हैं, मसल्स और लिगामेंट्स की वजह से। उसको फ्रेमिंग कौन कर रहा है, बोन, ताकि हम कुछ भी काम कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ बोन के सपोर्ट है, मसल्स के सपोर्ट है, हम आगे काम करते जा रहे हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी यहां तक कोई डाउट है बताओ, बेसिक बेसिक बताऊंगा क्योंकि ये आपको सपोर्ट करेगा। क्लियर हो रही है ये चीजें? यस सर। ओके, तो हमने अब आ गए हैमस्ट्रिंग्स की तरफ। इधर सामने देखो एब्डोमिनल मसल्स हैं, ये ओब्लिक्स होते हैं साइड में, और जो एब्स होते हैं ये जो पोर्शन है रेक्टस एब्डोमिनस, तो ये जो मसल्स हैं ये केज का काम करती हैं। इसके पीछे हमारे क्या है, स्पाइन के आगे और मसल्स रेक्टस एब्डोमिनस के बीच में क्या चीज है, हमारे इंटेस्टाइन है, स्प्लीन है, लीवर है, एब्डोमेन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, पेनक्रियाज है, क्या बोलते हैं गॉल ब्लैडर है। ये सारी चीजें किसने संभाल के रखी हुई है, किसने संभाल के रखी हुई है, रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स ने, ठीक है। अब आपने कई बार देखा होगा कि हमें है ना रिब्स पे भी सपोर्ट चाहिए होती है, तो रिब्स पे हमें कौन सी मसल सपोर्ट कर रही है, सेरेटस एंटेरियर। ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ ये सपोर्ट करते हैं कुशन का। कई बार बाहर से चोट लगने की वजह ये अपने ऊपर झेल जाती है। बोन के और स्किन के बीच में कुशन है हमारा, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन दे रहा होता है। अब अगर रिब्स ना हो और ये मसल ना हो तो हम कभी भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, हमारे लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है, हमारे हार्ट को चोट लग सकती है जो कि हम टॉलरेट नहीं कर पाते, और दैट कुड बी अ फैटल रीजन, लाइफ ही खो सकते हैं हम। तो इसके लिए जरूरी होती है, ठीक है। अब ओब्लिक्स का क्या काम है, ओब्लिक्स हमें ट्विस्टिंग में सपोर्ट करता है। ये मसल्स केज को कंट्रोल करती है और ट्विस्टिंग में हमें हेल्प करती है। जो अभी बात कर रहे थे कि हम एक साइड से मूवमेंट कर पा रहे हैं, एक साइड से नहीं कर पा रहे हैं, ये भी एक रीजन है। ओब्लिक हमारे, आपने जितना एक्सरसाइज करी अल्टरनेटिवली करते रहे तो आप ठीक हो, अदरवाइज मसल्स की भी फ्लेक्सिबिलिटी मैटर करती है आपकी एक्टिविटी की उसमें, क्योंकि जिस तरफ से हम एक्सरसाइज ज्यादा करेंगे उसके ब्लड वेसल्स जो होंगी, वेन्स होंगी, आर्टरीज होंगी, वो फ्लेक्सिबल होंगे, वहां ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा, तो वो रिजिड नहीं होगी, ठीक है। आगे चले, अभी हमें एब्डोमेन तक हम आ गए, बाकी आप नाम नोट कर लेना, ये आपके काम आएंगे, ठीक है। यहां से आगे हम चलते हैं हैमस्ट्रिंग्स के, और उसके हैमस्ट्रिंग्स देखो सबसे बड़ा क्या है, ग्लूटस मैक्सिमस,
हिप जोन को जो सपोर्ट करता है, अगर खाली आपके ये पोर्शन भी कमजोर रहा, ये मसल्स कम रही, तो आप क्या करोगे, आप बैठ नहीं पाओगे, पेन होगा। ठीक है, इसके बाद ग्रेसिलिस, ये सपोर्ट कर रही है। देखो इसमें 4-5 हैं, लेयर्स हैं अलग अलग मसल्स की। वास्टस हो गया, ग्रेसिलिस हो गया, सेमिम ये क्या है, सेमिम एम्ब्रेनस, ठीक है, और सेमिटेंडिनियस। ठीक है, ये सारे के सारे हेमस्ट्रिंग मसल्स की हैं पोर्शन, जो सारे के सारे हमारे थाई से लेके लोअर बैक तक के सारे मसल्स को कंट्रोल करता है। और ये अलग अलग मसल्स हैं जो कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल मसल बिकम अ हेमस्ट्रिंग मसल्स। तो हमारे हेमस्ट्रिंग्स की मूवमेंट को कंट्रोल करने में इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। और ये सपोर्ट करता है, स्ट्रेंथ देता है आपको। जैसे मैंने बताया कि हमारे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी पार्ट कौन सा है, थाई पोर्शन है। तो थाई में अगर बोन स्ट्रॉन्ग है तो मसल्स भी स्ट्रॉन्ग ही होगी। जहां पे जोन सा पोर्शन स्ट्रॉन्ग होगा उसकी सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग ही होगी। तो वेट कैरी करने में खाली बोन ही वेट नहीं कैरी करता। अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, किसी ने 106 किलो वजन उठाया। हाँ, 506 किलो वजन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है अभी रिसेंटली। 506 किलो वजन मतलब 5 क्विंटल वजन बंदे ने उठाया। उसकी मसल स्ट्रेंथ देखिए कितनी ज्यादा होगी। गेटिंग माय पॉइंट? यस यस। ओके, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। तो हम कहां गए, अब हम नीचे की तरफ चलते हैं मसल्स में। देखो हमारे बोन के नाम के साथ साथ दूसरे नाम भी आ जाते हैं, जैसे टिबिलियस एंटीरियर, टिबिया के ऊपर टिबिलियस एंटीरियर आ गया। पेरोनस लोंगस, जो मसल्स लंबी है लोंगस, ये टिबिया के ऊपर है। तो ये हमारी मसल्स को, काफ मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है। ठीक है, गैस्ट्रोनिमस एंड सोलेस, ये चीजें हमारी काफ मसल्स को, जो कॉम्बिनेशन ऑफ काफ मसल्स है वो इनका है। इनके बीच में हमें बहुत सारी चीजें हो रहे हैं। लैक्टिक जिसे हम बोलते हैं, अगर आपने नाम सुना हो, लिम्फ सिस्टम, ये भी मसल्स को सपोर्ट करता है। कई बार क्या होता है, हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं, थक जाते हैं, तो ये मसल्स हैवी होने लगती हैं। उसका रीजन ये है कि लिम्फ सिस्टम इसको एडिशनल सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है। और लैक्टिक एसिड जब हैवी हो जाती है तो हमारे बॉडी पार्ट अकड़ने शुरू हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको अगर हम बीटिंग कर देते हैं तो लैक्टिक एसिड स्प्रेड हो जाती है और वो अपने आप रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। हम फिर दोबारा काम करने के लायक हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सटेंसर डेजिटोर्न ब्रेविस, एक्सटेंसर हेलोसियस ब्रेविस। अब ये हमारे एंकल की मूवमेंट को संभालता है, पैरों की मसल्स हैं ये हमारे जंपिंग करने में, हमारे एंकल को, बोन्स को प्रोटेक्शन करने में, स्ट्रेंथ देने में मसल्स का हमारा अपना रोल है। तो इस ढंग से हमने मसल्स को कवर कर दिया है। इसमें किसी को फिर भी कुछ क्वेश्चन है, आप डिस्कस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है? सब सो गए? नहीं सर। सर, हाउ कैन यू मेक द मसल्स फ्लेक्सिबल फॉर योगा पर्पस? देखिए मैंने आपको एक चीज बताई है, हमारी बॉडी, अब जो मसल्स हैं उसको कैसे समझे। आपने कैट केबल देखी है? क्या सर? कैट केबल देखी है कभी आपने? या जो कैमरे वाली वायर होती है, या आपकी कैमरे वाली वायर है, या आपकी जो इंटरनेट के लिए फाइबर केबल यूज करते हैं, वो देखी है आपने? यस यस यस। एक एक मसल जो होती है उसमें बहुत सारे टिश्यूज होते हैं, पतले पतले थ्रेड होते हैं, और इनके साथ कनेक्टिविटी होती है हमारी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की।
अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको ठीक ढंग से समझोगे तो आपका सारा सिस्टम समझ में आ जाएगा कि कैसे एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से कनेक्टेड है। अब जितनी मसल्स हैं इसमें वेट किस चीज का है? फ्लूइड का है। फ्लूइड किस किस चीज का बना हुआ है? फ्लूइड बना है लिम्फ सिस्टम से, फ्लूइड बना है ब्लड से, फ्लूइड बना है प्लाज्मा से, फ्लूइड बना है प्लेटलेट से। इस ढंग से हमारे बहुत सारे 7 कंपोनेंट हैं ब्लड के हमारे, जो हमें फ्लूइड के फॉर्म में हमें मिलते हैं, जिसको हम कहते हैं कि 70% हमारी बॉडी का पार्ट पानी से बना हुआ है। वो फ्लूइड जो है वो यही है। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं, कफ जमना शुरू हो जाता है। अगर ये ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता रहे, ये फ्लूइड फ्लो करता रहे, एक जगह टिक ना पाए, तो हम क्या होंगे? फ्लेक्सिबल होंगे। फैट नहीं जमा होगा, मोटापा नहीं बढ़ेगा, तो फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप बनी हुई है। मेटाबॉलिज्म हाई रहेगा तो हम फ्लेक्सिबल बने हुए हैं। और उसका बेनिफिट ये होगा कि हम बैलेंस्ड पर्सनैलिटी होंगे, फिटनेस लेवल अच्छा होगा, फ्लेक्सिबल रहेंगे। अगर हमने रोकना शुरू कर दिया तो मॉर्बिड मैटर स्टोर होना शुरू हो जाएगा, और ये तुम्हारी इच्छा से नहीं चलता। फिर ये धीरे धीरे, जैसे आपने देखा होगा तरल पदार्थ क्या करता है, सपोज करो आपने तेल को पानी में डाल दिया, उसमें लहर आई, क्या वो एकदम ब्रेक डाउन हो जाता है? आंसर मी। नो सर। दैट विल टेक टाइम। जब वेव्स आएंगी, उस वेव से धीरे धीरे वो स्प्रेड होगा, टूटेगा, धीरे धीरे जाएगा, एकदम नहीं जाएगा। ठीक वैसे ही हमारी बॉडी में ये फैट स्टोर होता रहता है और मसल्स डाइल्यूट होती रहती हैं, उनकी स्ट्रेंथ कम होगी, सर्कुलेशन रुक जाएगा, ब्लॉकेज आने शुरू हो जाएंगी। ये ब्लॉकेज अगर आ गई तो ये समझ लो कि आपने अपनी लाइफ को स्पॉइल कर लिया। स्पॉइल कैसे कर लिया? कि ये फैट बढ़ता गया, आप जाओगे स्ट्रेस में, स्ट्रेस लेके जाएगा या तो डिप्रेशन में या अग्रेशन में। आपका पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया। आपने पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कर लिया, अब क्या होगा? आपके कॉग्निशन पे इम्पैक्ट आएगा, डिसीजन मेकिंग डिस्टर्ब हो गई। डिसीजन मेकिंग डिस्टर्ब हो गई तो आप भ्रम में जियोगे, भ्रांति पैदा होंगी, डाइल्यूजन होंगे, इल्यूजन पैदा होगा। आप मतलब कोई भी काम प्रॉपर नहीं कर पाओगे और रिजल्ट आपका पूरी लाइफ का डिस्टर्ब हो जाएगा। एम आई राइट? सो ये तो आपने हेल्दी और अनहेल्दी का बताया। आई एम आस्किंग अबाउट लाइक, अगर आप बोल रहे हो कि ब्लड फ्लो से ही बॉडी फ्लेक्सिबल है, देन ऑल दैट्स दे मेक अ लॉट ऑफ वर्कआउट एंड हैव अ गुड फ्लो इन देयर बॉडी। हाँ, तो उनकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, बट ये तो खाली जिम्नास्टिक और योगा वालों की मोस्टली कह सकते हैं ज्यादा फ्लेक्सिबल जैसे होती है। तो देखिए, इसी चीज को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नॉट ऑल ऑन द ब्लड फ्लो ना। हाँ, इसी चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिम्नास्टिक का और योगा का कोई भी पार्टिसिपेंट होगा, वो अपनी बॉडी में पूरी मेहनत करता है, तभी इतना पहुंचता है ना जी। उस लेवल पे वो तभी पहुंचा ना जब उसने अपने बॉडी को इस लेवल पे लेके गया, एक्सरसाइज करी। हर एक आदमी क्या जिम्नास्टिक या योगा प्रैक्टिस के लेवल तक लेके जाता है? दैट इज अ डिफरेंस। उसी को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेहनत करने से आप किसी चीज में ज्यादा मेहनत करोगे, उसके एक्सपर्टीज हो जाते हो ना। जी जी। ठीक वैसे ही लाइफ में इंप्लीमेंटेशन है इन चीजों की। आप मेहनत करो, फ्लेक्सिबल रहोगे। मेहनत करो, जिस चीज में आपको जो चाहिए। ये शरीर है, मैंने शुरू में बोल दिया, करो और पाओ, कृपा होगी। कृपा ऐसे नहीं होगी कि अजय राठी जी ने आपको लेक्चर दे दिया, मसल्स ऐसे फ्लेक्सिबल होंगे, आप बैठे रहे और आपकी स्ट्रेंथ बढ़ गई और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई। नहीं ना, मेहनत करो, साइंस समझ में आ गई, उस पर एक्शन लेना शुरू करो। जिस पोर्शन पे एक्शन लोगे, फॉर एग्जाम्पल आप जिम में जाते हो, डंबल की प्रैक्टिस करते हो, बाइसेप के लिए, ट्राइसेप के लिए। अब आपने प्रैक्टिस करी बाइसेप और ट्राइसेप की, आपके एब्स तो नहीं बनेंगे उससे। एब्स के लिए तो आपको एब्स के लिए ही एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। समझ आई मेरी बात? सर मैं एक्चुअली साइंटिफिकली आई वाज जस्ट टॉकिंग हाउ टू इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी। लाइक कॉन्सेप्ट क्या है फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करने का, मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाने का? ब्लड सर्कुलेशन हमारी मसल्स में ब्लड सेल्स को भेजता है, वहां से मोर्बिड मैटर को इकट्ठा करके लेके आता है। वो किडनी के थ्रू फिल्टर होता है या फिर
गैसेस को लंग्स के थ्रू बाहर फेंक देता है। जितना ऑक्सीजन का लेवल हमारे शरीर में बढ़ा रहेगा, एनर्जी का लेवल हाई रहेगा, एक्सरसाइज की मूवमेंट बढ़ती जाएगी, इससे हम फ्लेक्सिबल होंगे। दिस इज अ साइंटिफिक रीजन। और यही स्पिरिचुअल टीका भी साइंस है। आप अगर एक्टिव हो, आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर है, ब्रीदिंग प्रॉपर जा रही है, टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर जा रहे हैं, आप किसी मॉर्बिड मैटर को कहीं रुकने नहीं दे रहे हैं, तो आप हेल्दी भी हो और फ्लेक्सिबल भी हो। अगर आप काम कर रहे हो ना, अच्छे से मेहनत कर रहे हो, रोजाना मेहनत कर रहे हो, तो 5 साल के बाद, 6 साल के बाद आप अपने बॉडी में एक ट्रेमेंडस चेंज देख सकते हो, ग्रेट चेंज देख सकते हो। आप अपने शरीर से वो कर सकते हो जो आप चाह रहे हो। 5 साल का टाइम, एक एक बॉडी पार्ट को खोल के रख दोगे, एक एक मूवमेंट को ओपन कर सकते हो, लेकिन इतना टाइम लगता है। जिम्नास्टिक के प्लेयर को भी, योगा वाले को भी, एक नॉर्मल आदमी को इतना टाइम लगता है। इससे ज्यादा की फ्लेक्सिबल उसमें गुंजाइश ही नहीं है। 5 साल का टाइम है, ठीक है। साइंटिफिक रीजन है, ब्लड सर्कुलेशन हमारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, गैसेस लंग्स को बाहर, स्टूल पास हो जाता है, यूरिन पास हो जाता है, इससे हमारी बॉडी प्योरीफाई रहती है। और अगर ये टॉक्सिन्स, मॉर्बिड मैटर्स हमारी बॉडी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम डिफॉर्मेशन भी कर रहे हैं, हम टॉक्सिन्स को अपनी बॉडी में रिजिड करने के लिए भी कर रहे हैं, और हमारा जमाव हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी तो अपने आप खत्म हो जाएगी इनएक्टिव बॉडी में, ये आपको पता ही है। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन था सर। हाँ जी बोलिए। जब हम लोग बॉडी को इतना समझ रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन की इतनी इंपॉर्टेंस है, और हम लोग लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं, मान लो ईयर्स को, अगर बॉडी मेंटेन करें, हाँ, तो हम लोग मैक्सिमम कितना जी सकते हैं? मतलब सम पीपल डाई एट 70, सम पीपल डाई एट 100। आज आपने मेरे दिल वाला क्वेश्चन पूछ लिया, और आपको मैं इस बात को बिल्कुल भी मायूस नहीं करूंगा। आज भी योगी लोग हैं ना, मेरी नॉलेज में कुछ लोग ऐसे हैं जो हिमालय में बैठे हुए हैं, और उन्हें उनकी एज के बारे में हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि उनकी एज कितनी है। लेकिन इतना जरूर है, उसका एग्जांपल दे देता हूं। देवरा बाबा जो है ना, देवरा बाबा एक योगी फॉर्म में थे, खेचरी मुद्रा स्थित थी, और उसकी वजह से उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था, बाहर की कोई चीज खाते पीते नहीं थे, केवल खेचरी मुद्रा से उन्होंने अपनी लाइफ को लगभग 300 साढ़े 300 साल तक जीवित रखा अपने शरीर को। और हिमालय में ऐसे लोग हैं, आपको मैं कह सकता हूं, क्योंकि मेरा एक दो से परिचय है, कि महाभारत काल के, रामायण काल के लोग भी आज की तारीख में हिमालय में बैठे हैं, और वे समाधिस्थ हैं। वो कभी कभी उठते भी हैं और आते भी हैं। सूक्ष्म शरीर से तो वे टहलते रहते हैं, लेकिन स्थूल शरीर से भी वो आते भी हैं और मिलते भी हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, इफ यू हर्ड अबाउट ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगानंद, अगर आपने सुना हो, उसमें महाअवतार बाबा जी के बारे में बात करी है। वे उस टाइम पे 700 साल की उम्र के थे जब उन्होंने योगानंद जी को दर्शन दिए। और जो महाअवतार बाबा जी हैं, उनके भी गुरु हैं, अब वो अनादिकाल से हैं। इस साइंस को ऐसे समझे, स्पिरिचुअलिटी को, कि हम अपने हाथ में हैं, और इसकी साइंस पीछे छुपी हुई है हमारी ब्रीदिंग पे, ऑक्सीजन पे और प्राणों पे। जो श्वास लेते हैं हम, केवल वो ब्रीदिंग लेते हैं, प्राण उससे कनेक्टेड नहीं है, उसमें से फिल्टर होके हमारे को प्राण मिलता है। प्राण जिसका स्ट्रांग हो गया, जिसने प्राणों पे कंट्रोल कर लिया, कुंभक वगैरह लगाने शुरू कर दिए, श्वास लेना बंद कर दिया, तो आपकी घड़ी, आपकी जो लाइफ का साइकिल है ना, वो ब्रीदिंग के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी घड़ी ब्रीदिंग है, आपके श्वास गिने हुए हैं। अब इस श्वास को काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया में फंसा के आप जितना मर्जी खर्च कर लो, आपने डेबिट कार्ड से निकाल लिया, ठीक है। क्रेडिट कार्ड का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, डेबिट कार्ड है। आपको इतनी अमाउंट आपने पुण्य की जमा करी, आपकी इतनी लाइफ है, आपने ये काम करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने श्वास रोक के, अब सपोज करो एक कछुआ 1 मिनट में केवल 2 श्वास लेता है या 1 ही लेता है, और एक कुत्ता 1 मिनट में लगभग 200 तक श्वास ले लेता है। किसकी आयु ज्यादा है? कछुआ की।
कछुए की ज्यादा हुई ना। यस टॉर्टोइज। जितने भी क्रिएचर है पूरे वर्ल्ड में, यूनिवर्स में, उनकी सबकी ब्रीदिंग के ऊपर सारी लाइफ है। ये बायोलॉजिकल क्लॉक जो हमारी है वो ब्रीदिंग पे डिपेंड करती है, ना कि हमारे बॉडी की एज पे। ये हम घटा बढ़ा सकते हैं। महाभारत में बहुत सारे लोग थे जो बहुत सारे पुराने पुराने थे। चिरंजीवियों का आज भी नाम है। परशुराम हो गया, कृतवर्मा हो गया, राजा बलि हो गए। तो इस ढंग से विभीषण हो गया, हनुमान जी हो गए, ये सारे के सारे वह चिरंजीवी हैं जो अभी तक जीवित हैं। मैं यहाँ पे अश्वत्थामा का नाम नहीं ले रहा हूँ, हालांकि वो भी चिरंजीवी है, अभी उनकी आयु पड़ी है। तो ये सब के सब प्राणायाम के अभ्यासी हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को अपने लेवल पे कंट्रोल कर रखा है। भीष्म पितामह को भी प्राणायाम का अभ्यास था, जिसकी वजह से ही वाज एबल टू कंट्रोल द डेथ। तो ये इसके पीछे की साइंस है। अगर मैं सही बता रहा हूं तो आपकी समझ में आ रहा हो तो ठीक है। ठीक है, ये आपने बताई ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगानंद। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगानंदा नहीं, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी है एक्चुअली। बुक का नाम ये है, टॉपिक इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। इट इज रिटन बाय आई हैव रेड दैट बुक। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगानंदा, इसीलिए तो बोल रहा हूं मैं। You can see it here. हाँ जी, I have this book in my hand. You can show it to the. नहीं नहीं, वो आपको पता है और आप पढ़ो उसे, देखो उसमें बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। Yes, I have gone through it. I have read it. कौन सी बुक है विकास, दिखाओगे एक बार? Yeah, you can see it's here. अच्छा अच्छा, ठीक है सर। और वो कौन से गुरु थे जो 700 साल से बाद भी जिंदा थे? बाबा जी, देवरा बाबा। देवरा बाबा भी 350 साल जिए हैं। और ऐसों की तो बहुत सारी लिस्ट है। हिंदुस्तान में योगियों की कमी नहीं है। इट इज अ लैंड ऑफ गुरुज। सिद्धों की कृपा यहाँ पे पूरी रहती है और यहाँ पे सिद्ध लोग बहुत हैं और आज भी हैं, ऐसी बात नहीं है। दिल से याद करो, मिल जाते हैं। तो हमारा मस्कुलर सिस्टम कंप्लीट हुआ सर। एवरीवन, कुछ रह गया तो बताइए। नहीं, ओके। क्वेश्चन टू विद्या मैम। आप इस पिक्चर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट सेव करिए अपने पास ताकि आपको रेफरेंस के लिए काम आए। ओके, थैंक यू। तो आज यहीं पे डॉक्टर सिंह, आई हैव कोरोना बट after one day I was able to do my routine yoga session of 1.5 hours, so now I'm better. वेरी नाइस, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बता दी। तो आज का यही संपन्न करें।